रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है? He said okay sing and show. So that's why he auditioned me. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है। ओरिजिनल यार मैं मानूंगी यार। ये जो सेटिंग चल रही है ना पीछे से, ये सेट पे भी होती थी। I honestly feel scared. I feel like Chamkila has ruined the experience of every other film that I'm ever going to do now. Because I've worked with the best director, the best co-star, the best music director, the best location. I've done a role that I don't think not only me, any actor can get, like to immortalize a person, a musician, a legend like Amarjot ji, to be able to sing myself, मतलब सब कुछ तो कर लिया। मुझे अब लगता है मैं अगली पिक्चर में क्या करूँगी। I really feel कि अब मेरी तो बैंड बज गई है, that what am I going to do next? You know, shooting Chamkila was like meditation. You know, it was full of music, yet it was the most calm, silent, disciplined, beautiful, harmonious set. You know, usually हम set पे होते ये कर वो कर लाइट नीचे कर ये कर अरे लाइट जा रहा है जल्दी करो like this is the sound you're used to on set. But here was the captain of the ship, who you can see is the most calm, meditative spirit. Same for Diljit and same for me. I meditate early in the morning. हम लोग सुबह 6-7 बजे set पे पहुंचते थे, 5-6 बजे तक shooting हो जाती थी. So you know, at the end of the day, you just feel fulfilled. You feel like आप किसी गुरुद्वारा में बैठ के आई हूँ मैं बड़े घंटे. You know, I used to feel like that. So it was beautiful. I think मैंने कुछ तो ज़िंदगी में सही किया होगा कि sir gave me a film. I've been wanting to work with Imtiaz sir for more than like 9 years. I remember like the day that I'd come into the movies, I had made a list of directors and sir's name was number 1. And I said like he'll never work with me, but I am putting him on the list obviously. And it happened, and then I got to sing in his film. It's just, I'm a fan of this experience, and I'm spoiled now for life. मुझे याद है last year या 2 साल पहले, was it 2 years ago? हाँ, I was on my way to a party that we were all at, by the way. It was, I think, Karan's birthday party, and I was on the way, and suddenly sir called me, and उन्होंने कहा, where are you right now? Are you free? So I said, yes sir, I'm free right now. I thought like he'll just have a chat with me. तो उन्होंने कहा नहीं दिलजीत आप शायद यूएस में थे, तो ये सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं, कैन यू डू इट? तो मैं लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ, अभी कोई सांस भी नहीं लेगा. एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वाज सर, डीडी, मी एंड इम्तियाज सर, एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे. एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है, यू नो इंट्रोडक्शन, मैंने कहा चलो इतना भी सही है, हेलो हाय हो गया. रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है? तो अब मैं क्या बोलूँ, तो मैंने कहा सर मतलब आई लाइक सिंगिंग. मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट, मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग. मुझे लगा सेफ आंसर, राइट? ही सेड ओके सिंग एंड शो. इंटेलिजेंस. I could not believe it. मैंने कहा गई पिक्चर, गई, अब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि he works with the most genius singers, artists in the world. अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, मेरे को जरा कास्ट कर लो. मतलब it was the, but मैंने I remember I sang दमादम मस्त कलंदर या कुछ, मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं गा रही हूँ. But at this point you were cast in the film. Yeah, but clearly there was an audition still going on. मतलब चल रहा है, वो process चल रहा था. नहीं, I was doing the film for sure, but of course I was telling sir कि सर सभी गाने मैं गाऊंगी, मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी पिक्चर में, मैं ही गाऊंगी बस. तो of course in the film हमारे ओरिजिनल चमकीला और अमरजोत के जो ओरिजिनल गाने हैं हमने वो भी गाए हैं, एंड सर के जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी हैं. तो that's why he auditioned me. So I was just telling you कि कैसे हुआ ये कॉल. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ. ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ.
मैं थोड़ी थोड़ी समझदा इंग्लिश, पर इंग्लिश हर एक दिन नवी आई जाती है, नवी आई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ? जब 14-15 साल का हुआ तब चमकीला आया लाइफ में। उससे पहले तो घर में जो सुनते थे, छोटे बच्चे को तो कोई अलाउ नहीं होता, उसकी तो कोई चॉइस नहीं होती। जो बहन सुन रही है वही सुन रहा हूँ हिंदी गाने, जो डैडी सुन रहे हैं कुलदीप मानक साहब, तो मैं कुलदीप मानक साहब सुन रहा हूँ। तो बारी तो तब आती नहीं थी, ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास फ़ोन है और हम चॉइस कर लेंगे। वो तो एक टेप रिकॉर्डर है, या डैडी सुनेंगे या बहन सुनेगी, तो छोटे बच्चे की क्या बारी आएगी। सो जब खुद बाहर गए जाना, फिर चमकीला इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर पता चला कि यार ये क्या कमाल का आर्टिस्ट है। एज एन म्यूजिशियन मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं, वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं, अभी भी उसकी कॉम्पोजिशन को फॉलो करते हैं। वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें, लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था, वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है। वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पे गाना बन रहा है, वो कैसे बना गया, वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की, कैसे वो डाउनलोड की उसने वो कंपोजिशंस, तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं। और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे, ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी, लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर। यस, दैट इज करेक्ट। तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं, ये लोग कैसे, चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता। लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए, लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी, उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं, उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है, इस नज़रिए से हमने नहीं सोचा था। और उसके बाद जब पता चला ए आर रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का, तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है, क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे, चमकीले से भी हाई थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में, और हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म। और आई होप कि चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है, अगर उसको भी अच्छा लगे, तो फिर सारा कुछ ठीक है। मैं तो रेडी था, क्योंकि ये इम्तियाज सर के साथ फिल्म करना मेरे हिस्से में नहीं आना था, ना ही मेरे ये सपने में था कभी। ये चमकीले की वजह से ही हुआ, इसका क्रेडिट भी चमकीले को ही जाता है। ये कहानी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी इम्तियाज सर की फिल्म का हीरो नहीं होता। No, but this is a start, right, इम्तियाज? Yes. So ये चमकीले की वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि दिलजीत वहाँ विलेज में शूट कर रहे थे पंजाब में, प्लेइंग चमकीला, बट ही हिमसेल्फ इज अ बिगर स्टार। उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ, मुझे लगा कि द वे दिलजीत हैज परफॉर्म्ड in a land where everybody is actually scared to even look at him because he's such a big star. We are talking about small town Punjab. वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ, या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ। इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, कि ही इज नॉट लाइक ही इज नॉट एनीथिंग, ही इज जस्ट चमकीला, यू नो। और मेरे साथ साथ परिणीति को, बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहाँ के जितने भी लोग थे, उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है, और दिलजीत वॉज नॉट देयर। सो ये चीज़ बहुत 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 मुश्किल है, और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ। When somebody does something like that, it makes it memorable. I don't think Pariniti was thinking, who am I? She was just thinking, who is Amarjot? You know, and that is why we do the work we do. तो ये आप लोगों का धन्यवाद, पाजी आपका धन्यवाद। मुझे बाद में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्ट्राइक करती हैं कि आप जो चीज़ हो, एंड अभी इन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है,
बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बस आपकी शुरुआत है, और आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ रहेंगे पाजी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस फ्रेशनेस केम इनटू माय लाइफ ऑफ डूइंग दिस फिल्म। आई एम थैंकफुल टू नेटफ्लिक्स टू टेक इट अप विद इक्वल लव। एंड thank you very much. चमकीला जी का जो सुर था ना वो बहुत ऊंचा था, और अमर जो फीमेल आवाज थी उनको मैच करने के लिए उनका 10 गुना हाई होता था। तो ये हमेशा चीटिंग करते थे सेट पे। मैं एक स्केल सेट करती थी और ये पीछे, ये देखो ये जो सेटिंग चल रही है ना पीछे से, ये सेट पे भी होती थी। What is it about Imtiaz? Like he calls you and you can't say no to him. No. So what does Imtiaz Ali say to you on that call? I think certain directors, you lose the titles. Sorry, say again. You lose the titles like director, composer. You become like friends. You become like co-storytellers. I think Imtiaz is one of them. Of course, there's Mani Ratnam, Rakesh Mehra, and so many other. But Imtiaz is like, we don't deal with, oh, give me a hit song. He never asks for all that stuff. I'll just listen to the story and say, can we have this? Can we have this? Can we have this? And he has certain things. So sometimes I give him something which is completely not suitable. He still has it in his kitty. And sometimes he comes up with, Irshad comes with beautiful lyrics and we start working on it. In this case, actually, the first question was, why me? Because that's Chamkila ji, he's already done the music, and it's about the music. So what is our take on it was our discussion. And that actually led us to all the songs we've done. The first time that Rahman sir had sounded a piece of music to me, I was overwhelmed and I said, I'm relieved. Because suppose I didn't like it, I would not say to A.R. Rahman that I don't like it. Because how do you tell somebody who's, A.R. Rahman? I can find out from the face. And I thank God that I like it because I'm safe. I'm on the safer side now, And so I told him that. He said, no, but you have a job and I have a job. We must do it also. So I don't know, with Rahman sir, it's like always a discovery. It's not about whether it's working or not. It's more like I can't even imagine where he takes me, even in storytelling, forget about music. So for us, it's more like a journey. It's not like, is this working or not?